کربلا کا فل واقعہ 10 محرم کا جو واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے، لیکن افسوس اب۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بنی ہوئی دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے کربلا کا فل واقعہ 10 محرم کا جو واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدے کا بیان ہے، جو آج ہم سننے والے ہیں۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر میکنے لگے اپنی ویڈیو کو پلے۔ آپ لوگ کے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر سے کرتے اپنی ویڈیو سٹارٹ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے، لیکن افسوس ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا، مت بھولنا۔ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو
4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन
साहबजादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पे बिखेरा गया, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने करबला का कंप्लीट बयान सुना, जिसमें हमने ऑलरेडी मौलाना तारिक जमील का बयान सुना हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा का बयान सुना हुआ है। हमने काफ़ी करबला के बयान सुने हुए हैं, जिसमें आज ये एक वीडियो और देखी है जिस वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे एक ये बात समझ नहीं आई कि मतलब यजीद और शिमर वगैरह जो से थे वो कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन को जब जितने भी तीर वगैरह लगे तो उसके बाद ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा उनके इर्द गिर्द घूमने लग गया ताकि मज़ीद तीर उनके तक ना पहुंच सके। तो वहाँ से आवाज़ आई कि है ना दूसरी साइड से, शिमर तक की साइड से उन्होंने आवाज़ लगाई कि सब रुक जाओ। हज़रत ये वो घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते रहते, तो उसका एहतराम करो, उसको तीर ना लग जाए। तो मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का एहतराम उन्होंने किया, लेकिन वो वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का एहतराम ना किया, उनको इतनी बेरहमी से मारा गया। सो ये एक पॉइंट है कि मतलब कि क्या इनका मतलब हज़रत अली के साथ इतना ही इनको था कि उनके हज़रत वो जो बात भी उन्होंने ये बीच वीडियो में की कि हज़रत अली के बुका बुग़्ज़ है, हज़रत अली से वो लोग नफ़रत करते थे, उनका बदला वो हज़रत इमाम हुसैन से ले रहे। तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई ये क्या पॉइंट है। इसको मैं कंप्लीट क्लियर करूँगी, इसको मैं देखूँगी, इसके बारे में सर्च भी करूँगी ताकि मुझे कंप्लीट बयान के बारे में अंदाज़ा हो सके कि इस करबला के मैदान के का कंप्लीट बयान क्या है, जिसमें अब ये भी बताया गया कि बहुत सारे सब जितने भी शोहदाए करबला की शहादत हो चुकी थी ना, उसके बाद मुख्तलिफ कबाइल के लोग आ रहे थे और आगे कहते मैं इसकी लाश को पामाल नहीं होने दूंगा, मैं इसकी लाश को पामाल नहीं होने दूंगा, लेकिन किसी ने भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नहीं कहा। और वहीं पे वो करबला में ही पड़ी रही करबला की धूप में, और एक साइड से घोड़े आ रहे, दूसरी साइड से घोड़े आ रहे, उनको पामाल होते हुए रहने दिया। और किसी ने भी आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचा लें, उनको पामाल मत होने दें, यहाँ तक कि उनकी एक पसली दूसरी साइड में आ गई, दूसरी पहली वाली साइड में आ गई। मतलब क्या इतना ही लोगों के दिमाग में था कि मतलब नबी के नवासे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सबको कहा, जिसने मेरे हुसैन और हसन से प्यार कर, जिसने मुझसे प्यार करना है उसने हसन और हुसैन से भी प्यार करना है, जिसने उनसे ना किया उन्होंने मुझसे भी नहीं किया। सो ये क्या मतलब इतना ही लोगों के दिलों में आ गया था कि लोगों ने ये इस हद तक गिर गए। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने ईमान पे कायम रखे, सलामत रखे और हर गुनाह से हमें दूर रखे। इस तरह के जिस तरह के गुनाह लोग कर रहे हैं किए हैं, और आज भी मोस्टली लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर किस्म के जुल्म और ज़्यादती से आप सबको महफूज रखे। हमें ज़ालिमों में अल्लाह ताला शरीक ना होने दे, हम ज़ालिमों में ना जाएं, हम किसी पे जुल्म ना करें, किसी पे ज़्यादती ना करें। कोई आपके साथ गलत करते हो उसे बर्दाश्त करो, लेकिन खुद गलत मत करो किसी के साथ गलत करके जब उस रब की अदालत में जाएंगे ना, तो वहाँ पे अपने आप को फेस नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे ये नहीं होगा कि 10 बंदे आके आपको बोलेंगे अल्लाह इसने मेरे हकूक़ नहीं अदा किया, इसने मेरे हकूक़ नहीं अदा। वहाँ पे नामा माल आपका बोलेगा कि आपने इस बंदे के हकूक़ अदा नहीं किया, आपके सामने आपका नामा माल होगा। और उस लम्हे आपको सिर्फ अफसोस रिग्रेट रह जाएगा कि या अल्लाह एक मौका हमें दे दो, हम इस दुनिया में जाके वापस अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। ये वही करबला का मैदान है, यजीद ने सिर्फ वो 3 बर्रे आज़मों को हासिल करने के लिए ये करबला का मैदान लगाया, और एट द एंड 3 साल सिर्फ उसे हुकूमत मिली। और उससे यजीद के बेटे ने जब उसके बाप के वालिद की डेथ हो गई तो 40 दिन तक सिर्फ वो इस हुकूमत में बैठा। 41 डे उसने बोला कि नहीं, मेरा बाप जालिम था और मैं ये हुकूमत छोड़ता हूँ। उसे यजीद के बेटे ने इस्लाम के लिए, हज़रत इमाम हुसैन के लिए ये हुकूमत छोड़ दी। इस दुनिया को पाने के लिए उसने इतना कुछ किया, इतना गलत किया उस दुनिया में। उसके पास टाइम भी कितना था, सिर्फ 3 साल, और 3 साल के बाद सारी ज़िंदगी की, जो मरने के बाद सारी ज़िंदगी की अजियत तकलीफ़, वो सब अब उसका नसीब है। तो ज़िंदगी में कोशिश करे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करे। हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी लंबी है, हमें नहीं पता हमारी अगली सांस है या नहीं है। आज हम ज़्यादती कर रहे हैं, और अगर हमें अगले ही लम्हे मौत आ जाती है तो हमारी पूरी ज़िंदगी, या जो आखिरत की ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है, ये तो चंद सेकंड्स की, आखिरत की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी हम सिर्फ अफसोस के साथ गुजारेंगे। किसी के साथ ज़्यादती मत करें। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।